Good morning. Welcome you back in the revision. I know that tomorrow we have the test on the trigonometry. So before that, beforehand, let us complete this part of the topic. Few students had asked me some doubts. So considering all those doubts and few important questions from the textbook, I have this. I have come up with this video. Okay, so let's start understanding the. Of course, the doubts are there from the textbook as well as from the worksheet, the revision worksheet. So both the cases and few important questions from the textbook also have taken. So it is a combination of everything will be helpful for you all a lot. Okay. We have to check whether they are equal or not if this is given. So you can easily go for cot A is equals to 4 by 3. I'll just again give you the hint. I'm telling you I'm not going to solve this completely. Cot A is equals to 4 by 3 using the triangle concept. This is A angle, here is B and here is C. Using the triangle concept of it, you can consider cot A as adjacent side, that means AB upon BC upon opposite. So AB will be equal to 4k or 4x and ABC will be equal to 3x. Ultimately you can find the AC. Once you get the AC, you can take LHS, completely solve this 1 minus tan square upon 1 plus tan square, and then cos square minus sin square as a RHS, you solve it, you get your answer. Next one, the same thing, but here it is about angle A and C. So let's see what is it. So we have in triangle ABC, here is right angle at B rather, okay, A and C. Tan of A is given. So using tan A, which can be equal to BC upon AB, which is 1 upon root 3, I get BC is equals to x and AB as root 3x, which can easily give you this answer as AC as 2x. I hope so. Then you can find out these values to get the answer. Okay, sin A with respect to sin A and C then with respect to sin C. So in this manner you can complete this task and find the values. You have to prove, I hope you remember that how to solve this. We have to prove equal to sec A minus tan A. So everything should be converted as secant tan. So this LHS should be divided by cos theta to convert it into secant tan, and same thing to the denominator, sin theta plus cos theta minus 1 and cos theta. So if I divide, I get tan theta minus 1 comes here plus sec theta. So I have rearranged it basically, and then you can write anyhow, there is no problem. So tan theta plus 1 minus cos sec theta. This 1 should be replaced by sec square minus tan square, which is sec plus tan, sec minus tan. I am doing it as fast as possible. So I get tan theta plus sec theta minus sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta, and all that being equal to divided by tan theta plus 1 minus sec theta. So in the numerator we surely can take this part common. So I am left with whatever is required. Tan theta plus sec theta is been taken common, and I am left with 1 minus whatever the part is common, and that part with this part get cancelled. So I am left with tan theta plus sec theta or sec theta plus tan theta, and which is not asked. So I can take this separately as RHS, as we all know, and इसको conjugate से multiply करते हैं. We can multiply by conjugate. So once we multiply by conjugate, try to understand. Once we multiply it by conjugate, then we get this answer directly. Okay, so that's not the difficult task. Express the trigonometric ratio. On the trigonometric ratio, ये एक important part था. I wanted to take it basically all these kind of question. Express it in cot. So I would like to express all the trigonometric ratio in cot. Basically यहाँ पे बस sin sec and tan पूछा है, but I can consider for all. So whatever I am asked to find out, basically आपको sin and cos को करो तो बाकी सारे मिल जाएंगे. Okay, so this is what my target is. तो sin को देखते हैं पहले. sin को कैसे convert कर सकते हैं? Sin A can be written as 1 upon cosec A, and 1 upon cosec A can be written as under root of, देखो cosec A is equals to, cosec A can be converted in form of cosec square A is equals to, ऐसे लिख सकते हैं ना, cosec square A is equals to 1 plus cot square A.
एंड टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड आई गेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर. ये हो गया. अभी कॉस ए देखो, अगेन आई टेल यू व्हेन यू फाइंड अ कॉस ए थिंग्स विल बिकम इजी फॉर ऑल द वैल्यूज यू कैन फाइंड. ठीक है, तो वंस यू गो फॉर कॉस ए थिंग्स विल बी वेरी वेरी सिंपल फॉर यू. ओके, तो cos A is 1 minus sin cos square is 1 minus sin square A. तो दिस विल बी 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A. ठीक है, तो एक बार ये दो मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू गेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर. ओके, तो 1 गेट कैंसिल, आई गेट कॉट स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A. And that can be easily written as cos A as equals to cot A root of that upon root of 1 plus cot square. तो अभी आप लोग कोई भी फाइंड कर सकते हो. सेक है तो इसका उल्टा हो जाएगा, tan ए साइन अपॉन कॉस हो जाएगा एंड यू गेट योर आंसर इजीली. तो वही मैं आई वांट टू टेल यू इज एक अपने साइन एंड कॉस में से किया, एक भी किया, देन ऑल्सो यू गेट ऑल अदर थिंग्स, ऑल अदर रेशो. तो साइन मिल गया तो उसका मतलब कॉस मिल गया यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड यू कैन ईजिली गेट इट डन. ठीक है, डन. आई जस्ट होप इट इज क्लियर. सेम और एक क्वेश्चन था तो दैट ऑल्सो आई टेक इट. एवरीथिंग कन्वर्ट इनटू सेक. ओके, तो वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. कन्वर्ट ऑल रेशियोज इनटू सेक थीटा. तो सेक थीटा द इजिएस्ट वे इज नॉट साइन इज कॉस. तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा. ठीक है, थीटा लेते हैं. तो साइन थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा. तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा. तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा विल बी इक्वल टू सेक थीटा, नीचे आएगा, ऊपर रहेगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, रूट नहीं जाएगा. तो अभी साइन कॉस मिल गया तो आप लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हो. इजंट इट? दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं फटाफट. ये हमें इक्वल टू प्रूव करना है. ऑफकोर्स आंसर इज एक्सपेक्टेड इज 1, होपिंग. कैसे करना है? 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस एंड 1 प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन. साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया. एंड नाउ इंटरेस्टिंग थिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई ओनली फॉर दिस वन. या फिर कॉस अपॉन कॉस, यहाँ पे साइन अपॉन साइन कर सकते हैं. तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ऑल दैट डिनोमिनेटर सेम. एंड न्यूमरेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा एंड दैट्स इट. सो नाउ दिस इज समथिंग दैट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. एंड यू नो व्हाट इज दैट कि ये जो ब्रैकेट है ये सेम है इन बोथ द केसेस एंड ये भी ब्रैकेट सेम है एंड दोनों के बीच में साइन माइनस है. तो मैंने मल्टीप्लाइड इज a प्लस बी एंड इंटू a माइनस बी. तो दैट्स व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड हियर. तो मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सॉरी माइनस 1 एंड इज बीन डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाता है, 1 माइनस 1 0 हो जाता है. तो ये आएगा 2 साइन कॉस अपन 2 साइन 2 ओनली कॉस. तो ये आएगा 2 आंसर. तो आंसर इज 2. चलो नेक्स्ट फास्ट. ये तो किया हुआ क्वेश्चन है तो आई वोंट बी टेलिंग यू. डिवाइडिंग दिस बाय साइन, डिवाइडिंग दिस बाय साइन. तो अभी जो हमने सेकेंड 10 का किया था वही क्वेश्चन है. ओके, आई होप यू कैन डू दैट. कोसेक ए माइनस साइन ए, ये भी क्यों लिया मैंने? क्योंकि नॉर्मली हम लोग इसको भूल जाते हैं क्वेश्चन को. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन माइनस साइन ए 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस ए. तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए. तो कॉस ए स्क्वायर कटिंग कैंसिल, साइन ए स्क्वायर कटिंग कैंसिल, आई गेट साइन इंटू कॉस. ये तो वेरी क्लियर कि ये नहीं है ये.
तो इसको हमें करना क्या पड़ेगा, RHS भी लेना पड़ता है। तो हम लोग नॉर्मली ये भूल जाते हैं कि RHS भी लेना होता है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ अच्छा, RHS लेके साइन कॉस में कन्वर्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल। 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक्स स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, यू गेट डायरेक्टली tan स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट डिफिकल्ट नहीं है, सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये टू ये। तो 1 माइनस इसको हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए करते हैं, द होल स्क्वायर अपॉन, सेपरेट किया मैंने स्क्वायर को, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए द होल स्क्वायर। इफ़ यू डोंट वांट टू डू द सेपरेट तो इट्स ओके। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस साइन ए द होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए, ऐसे रहेगा है ना। और नीचे आएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए द होल स्क्वायर। अभी देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाई। तो आई गेट कॉस ए माइनस साइन ए द होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सेपरेशन में ये पर्पजली कर रहा हूँ, इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए द होल स्क्वायर। नाउ व्हाट यू टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों इक्वली होते हैं। देखो, ऑलवेज रिमेंबर ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू बी माइनस ए द होल स्क्वायर, और यू कैन वेरीफाई इट एज वेल। ओके, एक्सपांड करके वेरीफाई करके देख लो, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर आएगा tan स्क्वायर। और ये समझना जरूरी है इन दिस क्वेश्चन। इफ यू वेस्ट योर टाइम इन एक्सपांडिंग इट एंड देन कन्वर्टिंग एंड ऑल दैट, यू विल नेवर गेट दिस आंसर, नेवर। एक्सपांड करके कभी भी नहीं आएगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आएगा। आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड इट। इवन दिस इज सिंपल, बस इस दिस वन को आपको स्प्लिट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ये वन को, नीचे वाले को कुछ नहीं करना है। चलो, दीज आर द क्वेश्चंस विच फ्यू स्टूडेंट आस्क मी, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं फ्रॉम द वर्कशीट। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी एंड सेक थीटा प्लस कोस थीटा क्यू, एंड आपको ये प्रूव करना है। तो LHS लेते हैं। क्यू क्या है, ये है, मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू ब्रैकेट पी स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर माइनस 1, जो है वैसे लिखा, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। आई एम लेफ्ट विथ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, 2 इंटू साइन प्लस कॉस। व्हाट इज साइन प्लस कॉस इज पी। ये आ गया आपका आंसर। कितना सिंपल है, देखो कुछ था ही नहीं। ओके, यू आर गिवन इन दिस केस, थोड़ा सा अंदर चला गया, बट फिर भी आई जस्ट शो यू दैट कि आपका tan दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5। तो आप ट्राइंगल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे थीटा है, 90 है, ABC है। tan थीटा का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड, मतलब ये x आ जाएगा, ये रूट 5 x आ जाएगा। ठीक है, x एंड रूट 5 x। तो यू कैन इजीली फाइंड कि ये आंसर क्या आएगा। tan थीटा इज अपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, बराबर ना, तो ये 1 ही है ना। आई जस्ट होप इट इज़ 1। एक बार चेक करता हूँ, नहीं चेक करने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास। ठीक है, रहने दो, 1 है। तो स्क्वायर 5 रूट 6 होगा, ये रूट 6x होगा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इवेल्युएट करना है, तो इस ट्रायंगल से भी कर सकते हो ना। अनदर वे टू इवेल्युएट दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, देखो अगर tan 1 अपॉन रूट 5 है तो कॉट क्या होगा, रूट 5 होगा। तो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर, नीचे भी आएगा वही 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर। मैंने पर्पज यहाँ पे क्या नहीं किया, ब्रैकेट नहीं दिया, प्लस के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ऊपर 1 1 कैंसिल हो जाएगा, आई एम लेफ्ट विथ कॉट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। कॉट स्क्वायर क्या है, रूट 5 का स्क्वायर 5
माइनस tan स्क्वायर क्या है, रूट 1/5, 2 + 5 + 1/5 सॉल्व कर सकते हो. आई डोंट थिंक आई शुड हेल्प यू आफ्टर दिस, राइट. वेरीफाई द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वेरीफाई करना है यूजिंग tan थीटा इज 1/√5. तो आपका जो tan है जो 1/√5 है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग दिस ट्रायंगल, ये इसके लिए ट्रायंगल ही करना पड़ेगा. साइन फाइंड करो, कॉस फाइंड करो, पुट कर दो, 1 आ जाएगा आंसर. साइन क्या आएगा, x/√6x द होल स्क्वायर प्लस कॉस क्या आएगा, √5x/√6x द होल स्क्वायर. ठीक है, x गेट कैंसिल 1/6 आएगा प्लस 5/6 आएगा, आंसर 1. कुछ है नहीं इसमें, चलो कम. अरे इफ दिस इज गिवन तो साइन थीटा इज 3/4. आपको ये इवेल्युएट करना है जो भी है, जो कुछ भी दिया है. एवरीथिंग आई कैन कन्वर्ट इन साइन एंड गेट इट, बट बेटर ऑप्शन इज अपना ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करो. थीटा यहाँ पे 3x, ये आएगा 4x, तो 3x 4x 16 - 9, तो ये √7x आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो आई कैन सब्सटीट्यूट दैट इनटू द गिवन इक्वेशंस. तो ये आएगा √of कोसेक स्क्वायर. तो पहले कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो 4/3 16/9 माइनस कॉट स्क्वायर एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट 7/9 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा -1 इज tan स्क्वायर थीटा. नहीं क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज tan स्क्वायर, बट ठीक है हम लोग सेक स्क्वायर ही करते हैं. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/16 -1 प्लस 2 इंटू कॉट थीटा. कॉट इज एडजेसेंट √7/3, एक्स तो कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू √7/x प्लस कॉस थीटा अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज √7/4. ये रहा मेरा फाइनल इक्वेशन. ऊपर आएगा 16 - 7 9/9 1 डिवाइडेड बाय 16 1 -16 -7 सेक स्क्वायर थीटा ऐसा नहीं है. हाँ ये गलत हो गया, 16/7 होगा ना. सेक इज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, तो वो गलती हो गई, सॉरी. तो अगेन 9/7 हो जाएगा. 16 - 7 इज 9, 9/7 9/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा 7/9 प्लस ये हो जाएगा 2√7/3 इज इक्वल्स टू √7. अगर मैंने कॉमन निकाला आई एम लेफ्ट विथ 1/x प्लस 1/4, क्योंकि ये सॉल्व नहीं कर सकते. ये हो गया √7/3 प्लस 2√7/3 इज इक्वल्स टू √7 इंटू ब्रैकेट 1/x प्लस 1/4. ये आ जाएगा 3√7. 3√7/3 3 गेट कैंसिल इज इक्वल्स टू √7 1/x प्लस 1/4. सो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x बस रह गया वहाँ पे. प्लस माइनस में कुछ गफला है. √7 तो कैंसिल हो गया, तो 1/x विल बी इक्वल टू -1/4 आ रहा है. ओके, यहाँ पे लिखा है 4/3, कुछ तो गड़बड़ है. एनीवे, इन केस इफ यू फाइंड सम मिस्टेक प्लीज टेल मी, कमेंट करो. और कुछ नहीं है तो यही आंसर है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अरे यार ये कहाँ चला गया क्वेश्चन. हाँ नहीं, देखता हूँ, गिव मी 1 मिनट. कॉस अल्फा है दोनों तरफ, देखो यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस अल्फा तो आई एम गिवन दैट m इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा and n is equals to cos alpha upon sin beta. You are expected to prove this. तो m square plus n square मतलब ये स्क्वायर प्लस cos square alpha upon cos beta प्लस cos square alpha upon sin square beta. ठीक है, इंटू cos square beta. ये हो गया मेरा क्या, LHS. कॉमन निकालो, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली. कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकालो. cos square alpha 1/cos square beta प्लस 1/sin square beta.
into cos square beta. Okay, done. This is going to be equal to cos square beta, cos square alpha. ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा. ये 1 कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा. ये कैंसिल हो गया. कॉस स्क्वायर अल्फा अपन साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपन साइन स्क्वायर बीटा इज एन, तो ये एन स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू एन स्क्वायर. हो गया, दैट्स इट. देखो कितना है ईजी ये था. मुझे बस ये इसी का कन्फ्यूजन है, पता नहीं क्या हो गया. बस इसको थोड़ा सा आप लोग खुद से वेरीफाई करो, या फिर मैं भी बाद में करता हूँ, देन आई कैन सेंड इट टू. अभी वीडियो में नहीं होगा. तो चलो ठीक है, समझ में आ गया सबको. आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड इट. इन अ हरी वी कंप्लीटेड एवरीथिंग, बट यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. यू हैव टू प्रॉपरली फोकस, प्रॉपरली अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इट इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली ईच एंड एवरी क्वेश्चन. कल होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री पे टेस्ट. दैट्स इट. ओके, कितने मार्क का होगा क्या होगा ये मैं नहीं बता रहा हूँ. आई एम टेकिंग ऑलमोस्ट ऑफ 40 मार्क्स. आई थिंक ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, पर्पसली ज़्यादा ले रहा हूँ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस सो मेनी क्वेश्चंस. ओके, तो सब कुछ यू हैव टू नो प्रिपेयर एंड बी रेडी फॉर एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. बाय बाय. सी यू टुमारो.